ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं सदियों की मनोकामना पूर्ण। ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾಯಿತು, ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಯಿತು, ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ಈಡೇರಿದಂತ ಗಳಿಗೆ ಇದು. ಇದೇ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಧ್ವಜ ಯಾವಾಗ ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷಣ ಸದ್ಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಯುಪಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ, ವೇದ ಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಧ್ವಜ, ರಘುವಂಶದ ಧ್ವಜ, ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಧ್ವಜ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗಳಿಗೆ ಇದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗ ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜ ಹಾರೋದು ಒಂದು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಅನಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಮಂದಿರ್ ವಹಿ ಬನಾಯೇಂಗೆ, ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ದೇಶ. ಈ ದೇಶ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಕನಸಾಗಿತ್ತದು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಮಃ, ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯೇ ಹರ ಹರ. आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो. श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है. इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कहूं दुखी न दीना, नहीं कहूं अबुध न लक्षण हीना, 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है।
बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।